Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? My name is Nasir, and welcome to another video. In this video, I'll be showing you guys the LEDs that I use in my background, how they are controlled on voice, how I make these animations, what is the code, what hardware I use, all of that. And inshallah, by the end of this video, you will learn how to do this. In retrospect, I could have paid attention. I could have tried harder, been smarter, deep water, I'd be drowned. I should have felt the tension. I overreacted and acted childish, impacted us all around. When you were pushing me away, I should have tried to give you space and get out of your way. How did I not see this coming? You leaving one day. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me. To control the matrix, I am using the Arduino Uno. You can use any other microcontroller you want, and to take the input voice or input sound, I'm using the microphone MAX9 You can use some other module if you have, that also works. And to show the effect on the matrix, I am using the NeoPixels. खतरनाक चीज़ है यार. मतलब this, if you are going for a matrix to display something, go for this one. This is amazing and very easy to use. The connections are pretty simple. You have to connect the VCC and ground of the microphone with the 5V and ground of Arduino, and the output of the microphone with the analog input of Arduino. You can use any analog pin. Now to power up the NeoPixels, I am using a separate power supply of 5V and 20 ampere because the NeoPixels draw a lot of current, about 15 amps I think. This is because each LED of the NeoPixel contains like 3 LEDs, RGB, like red, green and blue, and each single color draws about 0.20 ampere. And once you combine all these colors, like if you're going for a white color, a single LED draws about 0.60 ampere of current. So that's like 60 milliamps into 256 LEDs. That'll give you about 15 amperes, near about that. So that's why I'll have to use a separate power supply. But if you're using a small matrix or an LED strip, you can use the 5V from Arduino because that's not going to draw a lot of current. So once you are done powering up your NeoPixels, you can connect the D-in pin of the NeoPixel with any pin of the Arduino, any digital pin of the Arduino, and the ground of the NeoPixels with the ground. And that's it, you're done. अब यार मैं NeoPixels यूज़ करता हूँ, उसकी मेनली 2 वजह हैं. पहली वजह ये है कि नॉर्मली LED मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें बहुत सारी LEDs होती हैं जिसको आप थ्रू रो एंड कॉलम कंट्रोल करते हो बाय टाइम बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है. पहले तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसको भी मैंने नहीं बनाया, मार्केट से लिया है. लेकिन चलो आपने ले भी लिया कहीं से, उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होती है. उसके बहुत सारे वायर्स होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड होती है, लाइक मल्टीप्लेक्सिंग करनी एंड में जाके, तो दैट स्टफ इज़ जस्ट टू हार्ड. एंड दूसरी वजह ये होती है कि वो सारे मैट्रिक्स जो भी होते हैं उनके पीछे बड़ा सा सर्किट लगा हुआ होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं. Now I'm using this one in my office for a project, and this is not bad, this is good. You can scroll some text on it, you can make some animations, shapes and all of that. अब ये मैट्रिक्स मैं नहीं करा कि बुरा था, इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आई लव दिस वन टू. सो LEDs जिस चीज़ में होती है मुझे वो पसंद होती हैं. बट NeoPixels इसे बहुत ज़्यादा और पसंद इसलिए है क्योंकि यार पहली चीज़, इसमें जो इन्होंने LEDs जिस चीज़ पे लगाई हुई हैं वो कोई सॉलिड चीज़ नहीं है. फ्लेक्सिबल पेपर टाइप थिन शीट है, उस पर सारी LEDs पेस्ट की हुई हैं, और फ्लेक्सिबल है, बहुत ही पतला है, कहीं भी उठा के रख दिया. लाइक मेरी वीडियो में पीछे एक कोने में पड़ी हुई होती हैं, एक बार घुमा के एक लैम्प के अंदर भी रख दी थी फर्स्ट वाली वीडियो में आई थिंक. और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा काम में आती है. दूसरी चीज़ कि इसके सिर्फ 3 कनेक्शंस होते हैं जो काम में आते हैं. फर्स्ट इज़ ग्राउंड एंड VCC, जो कि हर मैट्रिक्स में होता है यार, मतलब पावर तो देना है उसको. और लास्टली द प्रोग्रामिंग वायर, मतलब इसमें खाली एक प्रोग्रामिंग पिन होती है, D-in पिन. वो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हो, लाइक Arduino से कनेक्ट कर लिया, उससे आप पूरा मैट्रिक्स कंट्रोल कर रहे हो.
Now this is what I love about the NeoPixels. You just need one wire, one digital pin to control the whole matrix. खतरनाक चीज़ है. You can go all red, green, blue, and this is all done by a single wire. खतरनाक चीज़ है. You can also combine all these colors and make it white. क्या चाहिए यार और? You can also control the brightness of the matrix with just one wire. You can also make it bright back again with the same single wire. And you can also make the animations with that one wire. What else do you need, man? खतरनाक चीज़ है. So that was it for the hardware introduction. Now let's do some coding. I'll recommend install the fast LED library क्योंकि यार मैंने भी यही library यूज़ की थी और बहुत ही easy तरीके से मतलब LEDs यूज़ कर सकते हो उसके बाद. So all you have to do after you have installed the fast library, you have to go to the file examples and go to fast LED and open the blink sketch. तो मैंने already पीछे खोला हुआ है, दूसरी बार खोल लिया मैंने. Okay, so we are inside the blink sketch and the first thing we do is that we include the library, then we define the number of LEDs and we define the data pin. This is the same pin that you will be using to control the NeoPixels, and after that we define an array with the number of LEDs we have. And in the setup section there is one line of code that is kind of initializing the LEDs, which is fast LED.add LEDs. इसका काम सिर्फ ये होता है कि स्टार्ट में आपने बता देना है कि कौन सी डेटा पिन है, कितनी LEDs हैं और कौन सी LED आप यूज़ कर रहे हो. After that we jump into the void loop section and this is the part where we will be controlling the LEDs, where we will be turning it on and off and all of that. अब यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले जो LEDs की array define की हुई थी उसमें से हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जो कि array के अंदर हो, like going from 0 to all the way to 255, और उस LED का और उस array के एलिमेंट का हम कोई भी कलर सेट कर सकते हैं and that will show up on the matrix. Just like here हम LEDs की array में से element number 0 का कलर सेट कर रहे हैं to red and then we are using the function fastLED.show. ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने एक बार LED की वैल्यू चेंज कर दी, you have to use this function to like refresh the LEDs or like show the effect. So पहले आप array में से LED उठाते हो, उसका कलर सेट करते हो, then you show the LED. और इसी तरह आप मल्टीपल LEDs का कलर भी सेट कर सकते हो एक साथ and then show the LEDs. खैर यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने एक कलर सेट किया रेड, उसके बाद आप एक सेकंड वेट कर रहे हो, आप दोबारा कलर सेट कर रहे हो ब्लैक, उसके बाद आप एक सेकंड और वेट कर. So now if we upload this sketch, we will see the red LED blinking. And this is what this code does, the blink sketch. Now let's try to loop through all of these LEDs. In sub LEDs को red कर देते हैं. For that simply we have to run a for loop and initialize it with 0 और इसको ख़त्म करेंगे जाके तकरीबन 255 पे and increment होगी 1 की. उसके बाद simply करना यह है कि इस बार array में जो आपने वैल्यू देनी है वो इस लूप का जो वेरिएबल है वो दे देना है. उसके बाद ये खुद ही बस लूप में चलता जाएगा और कलर चेंज करता जाएगा. अब यहाँ पे सिंपली ये हो रहा है कि वी आर लूपिंग थ्रू ऑल द LEDs, वी आर गोइंग टू ईच LED वन बाय वन, चेंजिंग इट्स कलर and showing the effect, and then we are jumping to the next LED and one by one we are going from 0 to the last LED. Now let's get a little bit more creative. बजाय इसके कि हम उसको ऑफ से सिर्फ रेड करें, हम उसको ऑफ से रेड then रेड से कोई और कलर कर देते हैं. So we will be running like 2 loops here. पहले में वही आप 0 से 255 तक जाओगे लेकिन रेड करते हुए, दूसरे में आप वही चीज़ करोगे. कलर में यहाँ पे पर्पल रख देता हूँ, पर्पल भी बहुत अच्छा कलर है. So what this will do is that it will go from 0 to 255 and set all LEDs to red, and after that it will do the same thing but set the LEDs to purple. We can maybe change the second color to blue, so the LEDs go from black to red, from red to blue, and from blue to red, and so on. Or you can add more loops to change the colors even more. Even आप बीच में भी LEDs change करवा सकते हो if you want to do that. So you can get all creative here, जो करना चाहे कर सकते हो, and the effects are, the results are always amazing. मतलब खतरनाक चीज़ है. अब यही चीज़ करने का एक और तरीका भी होता है कि बजाय इसके कि आप
LED का एग्जैक्ट कलर बताओ, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑल ऑफ दैट, यू कैन ऑल्सो यूज़ द डॉट सेट RGB फंक्शन एंड ब्रैकेट में आपने RGB वैल्यूज़ देनी है, जो भी वैल्यूज़, जो भी कलर आप चाहते हो वो काम वैसे ही कर रहा है जैसे पिछला फंक्शन कर रहा था, बट दिस इज़ मोर स्पेसिफिक या मोर यू कुड गेट मोर क्रिएटिव हियर, मतलब यहाँ पे रूम ज़्यादा है क्रिएटिविटी के लिए. लेट्स ट्राई एंड यूज़ दिस फंक्शन नाउ. इस फंक्शन में पहले जो मैं ऊपर वाली रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ ग्रीन, क्योंकि ग्रीन हम कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे, और नीचे सेकंड मतलब ये ब्लिंकिंग करवा रहा हूँ सेम, बट इस पर फंक्शन मैंने दूसरा चूज़ किया है. सो इसमें फर्स्ट वाला कलर मैं रख रहा हूँ ग्रीन, और सेकंड में कलर रख रहा हूँ दो कलर का कॉम्बिनेशन ग्रीन एंड ब्लू, and this is how it works. So now you have another function that you can use to get more creative. Now if you want to change the color of all the LEDs, सारी LEDs का कलर सेम चेंज करना है, तो you can use this function fill solid. इसमें आप वही दोबारा LEDs का एरे बताते हो, नंबर ऑफ LEDs बताते हो, और कलर बताते हो कि कौन सा फिल करना है, और सारी LEDs का कलर एक साथ चेंज हो जाएगा. And again after using that function you have to use the fast LED.show. ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आप लूप थ्रू नहीं करना चाहते, आपको डायरेक्ट एक झटके में वैल्यू चेंज करनी है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं कर रहा था, फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन अचानक से, लाइक इन एन इंस्टेंट, यू यूज़ दिस फंक्शन मोस्टली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग द एनिमेशंस, और एटलीस्ट मेक 1 or 2 frames of animation. Now a special thanks to Safir who gave me this web page to make the animations very easily. यहाँ पे बेसिकली आपने ऊपर जाके कलर सेट करने हैं कि आपने कौन सा कलर या कौन से कलर का फ्रेम बनाना है, कौन से कलर की एनिमेशन बनानी है, और उसके बाद आपने मैट्रिक्स का साइज़ देना है. मेरा 16x16 था तो सही है. उसके बाद आपने गो पे क्लिक करना है एंड यूल गेट दिस चेक बॉक्सेस ऑल अराउंड द पेज. उसके बाद यू हैव टू चेक एनी ऑफ द बॉक्सेस. कोई एक कर लेते हैं, सबसे पहले वाला. दिस इज़ वॉट दिस कोड इज़ डूइंग सिंपली, मतलब जो बॉक्सेस आप टिक करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे कोड जो है वो प्रिंट होता जाएगा. After that you simply have to copy the code and paste it to your Arduino sketch and upload it. So this will make the animations much easier. Now let's try something more. एक square बनाते हैं इसी animation के साथ. So this would look something like a square, and let's copy this line of code and paste it over here, and then just upload the code and let's see what happens. Now let's try to light up some pixels at the center of the matrix. Copy the code and paste it in the Arduino sketch and then upload it. Now you'll have the basic idea how this can help you make your own animations. मतलब यहाँ पे तुम अपने frames बना के उसके बाद set कर सकते हो कि कौन सा frame पहले चलना है, कौन सा बाद में, and all of that stuff. So this web page is just to help you making your animations. क्योंकि कोड लिखना बहुत ज़्यादा ख्वारी हो जाएगी, सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड गेट द कोड, कॉपी पेस्ट इट एंड यू आर डन. अब यार मेरा कोड देख के सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है. अब पूरे कोड में से मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो सुबह हो जाएगी, बट देर आर 3 बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो टू रन दिस कोड और टू मॉडिफाई दिस कोड. पहली चीज़ ये कि मैंने एनिमेशंस के कुछ फंक्शन बना के रखे हैं, A1, A2, A3, A4 और C1, B1, इस तरह से सारी एनिमेशन अलग अलग हैं. तो यू कैन यूज़ दीज फंक्शन, चेंज देम टू चेंज द एनिमेशन. एंड एनिमेशन के फंक्शन में अंदर आप जाओगे तो स्विच केस यूज़ किए हुए हैं. उसमें क्या होता है कि जो भी केस ट्रू होगा उस पर वो स्विच कर लेगा, और उसका जो वेरिएबल आ रहा है, जो स्विचिंग करवा रहा है, वो आपके माइक से आ रहा है. मतलब माइक की जितनी इंटेंसिटी होगी उतना बड़ा वेरिएबल आएगा और उसका केस चलेगा, और वही फ्रेम एनिमेशन का जो चल जाता है. क्योंकि इन फंक्शन में सिंपली वो सारे फ्रेम्स जो मैंने बनाए थे वो रखे हुए हैं, लेकिन हर फ्रेम एक अलग केस में रखा हुआ है, ताकि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही वो फ्रेम चलेगा. और इन फ्रेम्स को आपने या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, आई थिंक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. लाइक फिर जब ये फ्रेम्स चेंज हों तो आपको थोड़ा वो इफेक्ट दिखे. अब इस एनिमेशन इफेक्ट को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैंने इस कोड के एंड में 2 लूप्स यूज़ किए हैं. अब इन 2 लूप्स का मेन फंक्शन सिंपली यही है कि इन्होंने इस एनिमेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ करना है. उसका तरीका यह है कि लेट्स से आपकी जो वॉइस इंटेंसिटी या साउंड इंटेंसिटी थी माइक ने जो कैच की वो 2 थी, तो ये पहले जाएगा 2 तक, क्योंकि ये 1 पे तो ऑलरेडी होगा. इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैंने सेट की हुई है 1 है. 1 से ये 2 पे गया तो फर्स्ट फ्रेम पहले से ऑन था, सेकंड फ्रेम ऑन हो जाएगा, थोड़ा एनिमेशन का इफेक्ट आ जाएगा. लेकिन लेट्स से उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आई वो 2 से 8 थी,
मतलब माइक ने 8th वैल्यू कैच की, तो अब हमें ये नहीं करना कि हम 2 के बाद फ़ौरन जो है 8 फ्रेम चला दें, वो थोड़ा जिटरी इफ़ेक्ट देगा, मतलब सडन इफ़ेक्ट देगा, सटल जो होती है एनिमेशन वो नहीं आएगी। करना ये है कि जब बड़ा नंबर आता है तो लाइक 2 के बाद 8 आया है तो इट हैज़ टू गो थ्रू 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8वां फ्रेम चलाना है। And that's it for the coding part, and I'll give you the code in the description and the web page also. I hope you enjoyed the video. If you did, please press the like button, and if you're new here, subscribe to my channel, and thank you for watching. अच्छी में This is the guy that is recording my videos. वो जो पिछली सिनेमैटिक वीडियो थी उसमें भी यही था।